see from a batter? Does he have that cricketing acumen, cricketing nous, which we saw from someone like Rinku Singh? Even in adverse conditions, he plays those dabs. There's a man in the deep, so it's 131 for 4. साल भर से गया, लेकिन फिर भी बच्चे होने की खुशखबरी नहीं मिली। आप मदद ले सकते हैं IVF की। IVF के एडवांस साइंस और एक्सपर्ट केयर ने लाखों कपल्स के सपनों को सच किया है। निसंतानता को है हराना, तो फर्टिलिटी कंसल्टेशन जरूरी है करवाना। इंदिरा IVF। देखिए सबसे तेज और एग्जैक्ट एग्जिट पोल 30 नवंबर को आज तक पर, और वही सबसे तेज नतीजे 3 दिसंबर को सिर्फ आज तक। Current run rate, the required run rate at 13.12, and it's a dangerous partnership brewing. Good if you're an Australian. From an Indian viewpoint, you want to snuff it as quickly as you can. 31 contribution from Tim David, 37 the contribution from Marcus Stoinis. Two sturdily built batters at the and two demure looking guys next to me. Catch indeed does Gupta. Thank you, Hurley. Never field before. I'll take that. Sturdily is a very well put adjective for both these two men that are built like Australian outhouses. They're huge. Good bowling. Just the last over two, you saw the way he operates. He's somebody who's well equipped to bowl in these conditions. No, absolutely, yes. This is going to be a big over. An important one after 18 from the last. This is what he does so well. Doesn't leave the stump at all. Snap of length. From wicket to wicket. Dream 11 top 5 fantasy players. Yashasvi Jaiswal right at the top of the tree there with 100 fantasy points. And Marcus Stoinis, 17 counting. Someone was just talking to Haydos about the warm-ups and what this man on your screen was doing. This was something you spoke about the other day, what these guys open bat pace and trying to hit it in a certain way. And that is exactly what he was practicing just before the game. Yes, if you see Tim David's setup and the way he presents the bat does have an open look to it, and hence the reason why when he hits that ball over cover and deep point, the ball can fly into the stands. Was eyeing long on long off there. And Marcus Stoinis, his ability to play a straight shot with a horizontal bat. Again, he's targeting, look at the bat face, it's slightly angular, but he still wants to hit straight. And this is another example of Suryakumar being really aggressive tonight. He knows that India need a wicket here, so he's gone to Akshar to get that breakthrough point. Very good over. Very, very good over so far. Just 4 runs coming off it, and also just the lengths he's bowled. Just one mistake in that previous over, that cost him a 6. And he's immediately made that correction. And I think these two are prepared to sit on this over and not lose a wicket here, because they know things are in their favour when the quicks come back on. And they're both striking the ball around that 200 mark. One good over, and they're asking Red shoots up. 135 for 4. देखिए सबसे तेज
एग्जैक्ट एग्जिट पोल 30 नवंबर को आज तक पर और वहीं सबसे तेज नतीजे 3 दिसंबर को सिर्फ आज तक पर। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा होता है, डॉक्टर आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि। 58 पर 4 विकेट खो दिए थे ऑस्ट्रेलियाई टीम ने और ऐसा लग रहा था कि शायद आसानी के साथ जीत के मुहाने तक पहुंच जाएगी, लेकिन बीच में स्टॉइनिस और डेविड खड़े हो गए और इन दोनों ने मिलकर के फिर से वापसी करवा दी अपनी टीम की। जोरदार शॉट, कैच ढूंढने में सफल, 4 रन मिलेंगे। कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहते हैं दोनों ही बैटर्स। रवि बिश्नोई आए, कंधे का उपयोग जरूर किया, टॉस स्पिन बॉल फेंकी, लेकिन बहुत अच्छा पोजीशन कर लिया डेविड ने और बॉल को डिस्पैच कर दिया 4 रनों के लिए मिड विकेट क्षेत्र में। कमेंट्री बॉक्स में मैं हूं मनोज दत्त और मेरे साथ है सुशील जोशी जी। हार्दिक स्वागत। धन्यवाद मनोज और सभी दर्शकों को फिर से नमस्कार। और भारत हालांकि हावी है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का संघर्ष फिर भी जारी है। थोड़े से शॉर्ट ऑफ लेग गेंद जरूर थी और उसी से मौका मिल गया डेविड को कि बैकफुट पर जाते और पुल करके 2 फील्डर्स के बीच में से मिड ऑन और एक मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर फील्डर था, इन दोनों के बीच में से उन्होंने पुल करके 4 रन बना दिए। फिर से बैकफुट पर इस बार कट किया, लेकिन बहुत अच्छी फील्डिंग, पॉइंट पर फील्डर सही जगह पर तैनात। हालांकि स्क्वायर कट अच्छा किया था, लेकिन सही जगह पर तैनात, कोई रन नहीं दिया। तो इस तरह से हर जाती हुई गेंद जिस पर डॉट बॉल जिसको कहते हैं ना, उस पर रन नहीं बने। ये लॉग ऑन पर फील्डर बिल्कुल बाउंड्री लाइन को छूते हुए एक शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट है, बैकवर्ड पॉइंट कवर मिड ऑफ या आउटसाइड के फील्डर दिखाई दिए थे, ऑन साइड में दिख रहे हैं। शॉर्ट थर्ड मैन है ऑफ साइड में और एक बैकवर्ड पॉइंट कवर पॉइंट है और एक कवर, ये ऑफ साइड के फील्डर्स हैं। ये शॉर्ट पिच थी और बैकफुट पर जाकर उठाकर मारने की कोशिश की, टाइमिंग ठीक नहीं, अब आउट। लॉन्ग ऑन पर सीधा कैच किया, उसकी शॉर्ट पिच थी नहीं जितनी की अपेक्षा की थी, जल्दी आ गई बैट पर, करने की कोशिश की, मिस टाइम हुआ स्ट्रोक और लॉन्ग ऑन पर सीधा कैच किया। और इसी तरह जिस विकेट की तलाश थी भारत को, वो टिम डेविड का विकेट आखिरकार मिल गया। 37 पर टिम डेविड आउट होकर वापस जा रहे हैं पवेलियन में और एक बार फिर से देखते हैं किस तरह से आउट हुई है। जिस उछाल और गति की उम्मीद कर रहे थे डेविड, उतनी तेज गति के साथ बॉल बैट तक नहीं पहुंची, इस वजह से ताकत नहीं लगा पाए। ऋतुराज गायकवाड़ मौजूद थे जिन्होंने कोई गलती नहीं की। रवि बिश्नोई ने एक और सफलता दिलवाई, समय की मांग को पूरा किया। टिम डेविड आउट हुए, 37 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया 149 पर 5। साल भर से ज्यादा हो गया, लेकिन फिर भी बच्चे होने की देखो, आप मदद ले सकते हैं आईवीएफ की। आईवीएफ के एडवांस साइंस और एक्सपर्ट केयर ने लाखों कपल्स के सपनों को सच किया है। निसंतानता को है हराना, तो फर्टिलिटी कंसल्टेशन जरूरी है करवाना। इंदिरा आईवीएफ। देखिए सबसे तेज और एग्जैक्ट एग्जिट पोल 30 नवंबर को आज तक पर और वहीं सबसे तेज नतीजे 3 दिसंबर को सिर्फ आज तक पर। नए बैट्समैन आए हैं, मैथ्यू वेड जो कि कप्तान है ऑस्ट्रेलिया टीम के, T20 क्रिकेट टीम के। वो भी आक्रामक बल्लेबाज है, वो भी एक बड़ा स्कोर खड़ा कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया की हालत खराब है, 39 गेंदों में 96 रन बनाने बहुत मुश्किल काम है, लेकिन असंभव नहीं। T20 क्रिकेट में हो सकता है ये, लेकिन भारतीय बॉलर का शिकंजा लगातार कस रहा है। 97 रन बनाने हैं 39 गेंदों पर और बिश्नोई बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं। आते ही रिवर्स स्वीप किया, 1 ही रन मिलेगा। फील्डर्स बिल्कुल सही जगह पर तैनात और ये विकेट जो गिरा था ना, एक बार फिर से देखते हैं, उतनी जगह मिली नहीं और इसीलिए जैसे पुल करने की कोशिश शायद मिड विकेट पर मारना चाहते थे, लेकिन लॉन्ग ऑन पर गेंद चली गई और आउट हो गए। और देखिए खुशी का ठिकाना नहीं, दोनों हाथ ऊंचे किए और टिम डेविड को मालूम है कि जो काम अधूरा छूट गया था वो आखिर अधूरा ही रह गया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए अभी संभावनाएं समाप्त नहीं हुई है। जब भी ऑस्ट्रेलिया टीम इस प्रकार की स्थिति में रहती है तो वहां पर वेड एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि विशेषज्ञ माने जाते हैं। इस तरीके की परिस्थितियों से ऑस्ट्रेलिया टीम को किस तरीके से बाहर निकालना है वेड अच्छी तरह जानते हैं और समय समय पर उन्होंने अपने बल्ले की चमक से
इस काम को अंजाम देने में सफलता भी हासिल की है। बिश्नोई बढ़िया बॉल, सकारात्मक रवैया बेहद जरूरी है। भले ही आप खेल के किसी भी वर्जन में खेल रहे हो, टेस्ट क्रिकेट, ओडीआई या टी20, अच्छी बॉल तीनों ही वर्जन में अच्छी मानी जाती है। बिल्कुल, अच्छी गेंद का कोई विकल्प नहीं है। अगर आप अच्छी गेंदें करेंगे, भले ही आपकी कुछ गेंदों की पिटाई हो जाए, आखिरकार उसको आपको फल उसका मिलता ही है और विकेट मिलने की संभावना बनती ही रहती है। 95 रन बनाने हैं 37 गेंदों पर। दर्शकों को मजा आ रहा है। टी20 क्रिकेट का रोमांच यहाँ पर देखने को मिल रहा है। विष्णु एक ही रन मिलेगा और उसी के साथ संतोष करना पड़ेगा। ओवर की समाप्ति 14 ओवर के बाद 142 पे 5। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता था माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। देखिए सबसे तेज और एग्जैक्ट एग्जिट पोल 30 नवंबर को आज तक पर, और वही सबसे तेज नतीजे 3 दिसंबर को सिर्फ आज तक। 36 गेंदों के ऊपर 94 रनों की जरूरत इस समय। भारत ने बल्लेबाजी करते हुए 235 रन बनाए थे 4 विकेट के नुकसान पर निर्धारित 20 ओवर्स में। फिलहाल ऑस्ट्रेलिया ने 14 ओवर्स के बाद 142 रन बनाए हैं 5 विकेट के नुकसान पर, और जरूरत है 94 रनों की बची हुई 36 गेंदों के ऊपर। लेकिन अभी यहाँ पर 50-50% दोनों ही टीमों के पक्ष में दिखाई दे रहा है, लेकिन निर्णायक मौकों पर जो से कम गलती करेगी वो आगे बढ़ेगी। मुकेश कुमार को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया, 2 ओवर में 26 रन दिए हैं। पिछले मैच में 4 ओवर में 29 रन दिए थे। बहुत ही किफायती गेंदबाजी की थी उन्होंने, लेकिन आज महंगे साबित हुए। भारतीय समर्थकों का हुजूम यहाँ पर है, और क्यों ना हो। भारत में मैचेस हो रहे हैं, भारत विश्व कप में अभी अभी आ रहा है। लोगों को मजा आ रहा है कि यहाँ भारत वापस मजा चखाने की परंपरा शुरू हो गई। ऑस्ट्रेलिया को पहले मैच में पराजित कर चुका है, दूसरे मैच में भी अभी फिलहाल तो हावी है। वेट सामना कर रहे हैं, फुल टॉस और ऑन साइड में खेला, 1 रन लिया, दूसरे रन के लिए दौड़ रहे हैं, जो कि बड़ा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर सीधा थ्रो पहुंच जाता, स्टेडियम पर वो स्टंप्स पर लग जाता तो फिर आउट होने की संभावना थी, लेकिन स्टंप पर लगा नहीं तो दूसरा रन भी बन गया। हर रन यहाँ पर महत्वपूर्ण होगा, लेकिन एक गेंद पर 2 रन बने। ये देखिए, थ्रो में ही दूसरा रन ले लिया, और ये अगर लग जाता सीधा या बराबर कलेक्ट कर लेते तो फिर निश्चित रूप से आउट हो जाता। लेकिन थ्रो इतना हार्ड था, टप्पा ऐसी जगह खाया था कि वो कलेक्ट नहीं कर पाए मुकेश कुमार। और हाँ, कह रहे हैं कि भाई इस तरफ करना था थ्रो को, बैकफुट पर जाकर साइड में पंच किया और 1 रन। 1-1 रन से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर 15 रन से ज्यादा पर ओवर चाहिए, जो कि बहुत मुश्किल काम है ऑस्ट्रेलिया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कोशिशें उनकी अभी भी जारी है, और इस मैच में देखें कि 43 पर नॉट आउट है, 1 विकेट भी लिया उन्होंने, और 1 कैच बहुत जबरदस्त उन्होंने लिया था। अब तक का ऑलराउंड प्रदर्शन स्टॉइनिस ने किया है। वो कहते हैं ना कि मौके के खिलाड़ी हैं, मौका मुश्किल होता है तो बेहतर प्रदर्शन करने के लिए विख्यात है। ऊपर से लिया गया दृश्य कितना खूबसूरत लग रहा है स्टेडियम। एक बार फिर से पहला रन तेज गति के साथ लिया और दूसरा रन चुरा लिया। जिस समय वेड और स्टॉइनिस ने एक दूसरे को क्रॉस किया था, वहीं पे तय हो गया था कि दूसरे रन के लिए जाना है। और यहाँ पर एक एक गेंद, एक एक रन बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए किस तरीके से बहुत हल्के हाथ से सॉफ्ट हैंड के साथ बॉल को प्लेस किया, और दोनों ही बैटर जानते थे कि उनके पास भरपूर समय है दूसरा रन बनाने का, जिसका फायदा उठाया उन्होंने। और इसीलिए पहला रन जल्दी से ले लिया। जब पहला रन जल्दी ले लेते हैं ना तुरंत ही, तो फिर आपके पास संभावना बन जाती है दूसरे रन के लिए। ये ऑफ स्टंप के बाद ज्यादा बार और तुरंत ही वाइड का इशारा किया जाएगा अंपायर द्वारा। संघर्ष तो कर रहे हैं, और जिस तरह से स्ट्रोक खेलने का भी कभी उठाकर मार रहे हैं ऑफ साइड में, ये सीधा बॉलर के ऊपर से उठाकर मारा था, ये ऑफ ड्राइव ऊंचा उठाकर छक्के के लिए गया था।
और ये अपरकट का भी उन्होंने बहुत सुंदर प्रदर्शन किया। तो अब तक उनका संघर्ष जारी है और क्रिकेट रोमांचक है, इसमें तो कोई संदेह नहीं। स्टॉइनिस 45 रन पर खेल रहे हैं। ये उठाकर मारा, उनके इलाके में पड़ी थी और गेंद सीधी बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है, लेकिन वहां पर अक्षर पटेल खड़े, उन्होंने कैच ले लिया। बहुत ही खूबसूरत कैच, ऊंची जगह चली गई थी, ताकत उतनी लगा नहीं पाए थे, हालांकि इलाके में थी उनकी, ताकत उतनी दे नहीं पाए, केवल उन्होंने चिप सा कर दिया था और इसीलिए अक्षर पटेल ने कैच ले लिया और इस तरह छठा विकेट गिर गया ऑस्ट्रेलिया का और ऑस्ट्रेलिया की मुश्किलें बरकरार है। क्योंकि रन औसत काफी विशाल का है, इसलिए जोखिम उठाना समय की मांग, और जब आप खतरा मोल लेते हैं तो जरूरी नहीं कि हर बार आपको सफलता मिले। वही सब कुछ हुआ। अक्षर पटेल मौजूद थे जिन्होंने कोई गलती नहीं की। मुकेश कुमार को पहली सफलता मिली। इसी के साथ मार्कस स्टोइनिस आउट हुए 45 रन बना करके ऑस्ट्रेलिया 148 पर 6। तो 48 रन 6 विकेट के नुकसान पर ये तमाम ऑस्ट्रेलिया के पीएलएस दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल तो जो बल्लेबाज आए एबॉट, हालांकि गेंदबाज के रूप में उनकी पहचान ज्यादा स्थापित है। 32 गेंदों पर 88 रन बनाने हैं ऑस्ट्रेलिया। काम मुश्किल से मुश्किल तर होता जाएगा और ये यॉर्कर गेंद थी, हल्के हाथों से खेलकर 1 रन लिया। जिस तरह आउट हुए थे ना स्टॉइनिस, ये केवल चिप सा कर दिया था, कोई तेज स्ट्रोक में था, ताकतवर स्ट्रोक लगा नहीं पाए थे और इसी कारण सीधा कैच के रूप में गया लॉन्ग ऑन की तरफ, आराम के साथ कैच कर गया। अक्षर पटेल कैच छोड़ते नहीं है, अच्छे फील्डरों में से एक कहे जाते हैं। सूर्य कुमार यादव देखिए, उनकी कप्तानी में पहला मैच जीते और यहाँ भी उन्होंने अपने बॉलर को गले लगा दिया। दोनों ही नए बल्लेबाज फिलहाल पिच पे मौजूद है और जरूरत है जोरदार स्ट्रोक्स की, और उतना आसान नहीं रहता इन परिस्थितियों में कि आप आते ही जोरदार स्ट्रोक्स के लिए। मुकेश कुमार ने बढ़िया गेंदबाजी की है इस ओवर में। फील्डर मौजूद है, नजदीकी मामला यहाँ पर तीसरे अंपायर के पास जाएंगे, चलते हैं नितिन मेनन के पास। We have umpire review for the bowlers and side on wicket, please. Yes, batter is diving, and the bat is inside, grounded inside. Thank you. Very good participation from the screen. इसी के साथ सुरक्षित रहे। 15 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया 149 पर 6। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल की रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी है, और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलिए। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने। प्रसिद्ध कृष्णा को लाया गया है, 1 विकेट ले चुके हैं 26 रन देकर 2 ओवर्स में। आज भारतीय बॉलर्स ने अच्छा प्रदर्शन किया और ऑस्ट्रेलिया को लगातार दबाव में रखा। 30 गेंदों पर 87 रनों की जरूरत। ये यॉर्कर बॉल ऑफ स्टंप लुढ़क कर नीचे गिर पड़ा, खूबसूरत यॉर्कर, और एबॉट साफ बोल हो गए, स्टंप खड़खड़ाकर नीचे गिर गया और इस तरह 7वां विकेट गिर गया ऑस्ट्रेलिया का और ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल पराजय की कगार पर पहुंच गया। बेहतरीन गेंदबाजी प्रसिद्ध कृष्णा द्वारा एक और नए स्पेल में आए और पहली बॉल पर सटीक यॉर्कर के बल पर स्टंप उखाड़ दिए। एक और झटका दिया ऑस्ट्रेलिया को। बेहतरीन गेंदबाजी। शीन एबॉट आउट हुए 1 रन बना करके ऑस्ट्रेलिया 149 पर 7।
औपचारिकताएं ही बाकी हैं। 29 गेंदों में 87 रन, यानी हर गेंद पर 3 रन चाहिए, जो कि साधारणतया संभव नहीं है। और फिर ये देखते हुए कि अब तो 7 विकेट गिर चुके हैं, केवल मैथ्यू वेड ऐसे बल्लेबाज हैं जो तेज बल्लेबाजी कर सकते हैं, और पिछली 12 गेंदों पर केवल 10 रन बने और 3 विकेट गिर गए, तो आप समझ सकते हैं कि दबाव कितना असहनीय होता जा रहा है। टर्न की ऑन साइड में 1 ही रन देंगे यहाँ पर, और 150 रन पूरे हुए ऑस्ट्रेलिया के। मैथ्यू वेड के हाथ में स्ट्राइक, एलिस यही तो चाहते हैं कि मैथ्यू वेड को स्ट्राइक मिले। यॉर्कर देखिए कितनी खूबसूरती, बिल्कुल सटीक ऑफ स्टंप पर। यॉर्कर जो होती ना, पैर तो अलग था लेकिन फिर भी बैट के नीचे टप्पा खाया और सीधा ऑफ स्टंप लेके उखाड़ ले गया। गजब की बॉलिंग है। तो ऐसा जब बॉलर को हो जाता है ना, तो बॉलर को तो मजा आ जाता है। स्टंप पे से लड़खड़ाते हुए देखता है, तो फास्ट बॉलर को इससे बढ़िया दृश्य की कल्पना होती ही नहीं है। बिल्कुल सही फरमाया आपने। अंगूठा तोड़ यॉर्कर और बैट की तोड़ यॉर्कर। अगर बैट लगता तो निश्चित रूप से जो बैट का जो सबसे निचला हिस्सा होता है, जिससे टो बोलते हैं, वो भी टूट सकती है। इस प्रकार के सटीक यॉर्कर से चेंज ऑफ पेस, बिल्कुल सही रणनीति। स्ट्रोक लगाने के लिए जाने जाते हैं, और अब उनकी कोशिश भी यही रहेगी कि अधिक से अधिक स्ट्राइक उनके पास रहे, और जब भी उन्हें मौका मिले वो जोरदार स्ट्रोक लगाएं। लेकिन यहाँ पर सूर्य कुमार यादव प्रयास करें मैथ्यू वेड को अधिक से अधिक स्ट्राइक से दूर रखने की। 30 गज के दायरे में एक आध खिलाड़ी को और तैनात किया जाए, ताकि जो एलिस है उसके पास अधिक से अधिक स्ट्राइक रहे। प्रसिद्ध कृष्णा जो ओवर जिस तरह से कर रहे हैं, अभी तक 28 रन देकर 2 विकेट हासिल कर चुके हैं। जैसे जैसे विकेट प्राप्त हो रहे हैं ना, उनकी रफ्तार बॉलिंग, ये फिर से यॉर्कर थे, बहुत ही बाल बचे, लगभग बोल्ड होते होते बचे यहाँ पर एलिस। बहुत ही खूबसूरत यॉर्कर थी, ऑफ स्टंप के कुछ ही बाहर कर पाया, और प्रसिद्ध को तो लगा कि एक और विकेट लेकर प्रसिद्ध और बढ़ा सके, लेकिन बाल बच गए यहाँ पर एलिस। 151 पर 7 स्कोर नहीं ठहरा हुआ, और ऑस्ट्रेलिया का काम अब संभावना से बाहर जाता जा रहा है। 26 गेंदों पर अब 85 रनों की जरूरत है, 3 ही विकेट केवल बाकी है। पहचाने हुए बल्लेबाज अब बचे नहीं है। शॉर्ट पिच थी, बाउंसर, और कुछ नहीं कर पाए। बैट्समैन केवल देखते रह गए, और अपार ने तुरंत का 1 फॉर द ओवर जो कहते हैं ना, वो कह दिया। गति और तेजी का अच्छा मिश्रण यहाँ पर प्रसिद्ध कृष्णा द्वारा। India's first T20 against Australia was in the semi-final of the 2007 T20 World Cup. से चेंज ऑफ पेस, बढ़िया लाइन और लैंड, एक और डॉट बॉल फेंकने में सफल रहे। क्या बढ़िया बॉलिंग कर। देखिए आपको सफलता क्या क्या सिखाती है। पहले बॉलिंग की पिटाई हो रही थी, लेकिन जैसे ही कामयाबी मिलना शुरू हुई, बॉलिंग की धार और उनके उत्साह में, उनकी चाल में उछाल दिख रहा है, रफ्तार में तेजी दिखाई दे रही है, और साथ ही जो विविधताएं भर रही ना, वो बहुत ही घातक लग रहे हैं। हालांकि रफ्तार भी उनकी काफी, भारत के 30 गेंदबाजों में से एक माना जाता है। ये बॉल इस बार लेग स्टंप लड़खड़ा कर दूर जा गिरा, अद्भुत दृश्य, और उसी के साथ ये 8वां विकेट गिर गया है। एलिस का लेग स्टंप उखड़कर दूर जा गया, प्रसिद्ध कृष्णा ने उनका लेग स्टंप उड़ा दिया है, और उसी के साथ ये 8वां विकेट गिर गया है। लेग टू गेट दूसरे को लेकर के हम देखते जाते हैं, एक बार फिर से देखते हैं। पहली बॉल पर ऑफ स्टंप उखाड़ा था, और इस बॉल पर लेग स्टंप पूरी तरीके से उखाड़ करके काफी दूर जा गिरा। बढ़िया गेंदबाजी प्रसिद्ध कृष्णा द्वारा। एलिस आए और गए, 1 रन बना करके 152 पर 8 ऑस्ट्रेलिया। स्वाद में आया है? अब आया सही स्वाद। जब स्वाद के बड़े हो लाले, तो MDH का चंकी चाट मसाला डाले। MDH उतना तुम्हें का खबर चाहे जैसा होगा, डॉक्टर आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई जरूरी पेन किलर नहीं,
आयुर्वेदिक औषधि। ऑस्ट्रेलिया का 8वां विकेट 152 पर गिरा। देखिए एक समय तो जब 5वें विकेट की भागीदारी हो रही थी ना, तब 139 रन बन गए थे कुल मिलाकर। 5वें विकेट के लिए तो नहीं, लेकिन चौथा विकेट 58 पर गिरा था और 5वां विकेट गिरा 139 रन पर। तब थोड़ी दहशत फैली थी। ये फिर से यॉर्कर करने की कोशिश की इस बार अर्शदीप ने, तो फुल टॉस हो गई और कम से कम 2 रन यहाँ पर जरूर मिल सकते हैं, लेकिन एक ही रन लिया। अब उनको भी मालूम पड़ गया कि रन बन नहीं सकते, बिना काम के जानबूझ में डरना ठीक नहीं है। और ये स्टंप देखिए किस तरह गुलाटी खा रहा, 3 गुलाटी, जो कहते हैं ना स्विपर जिस तरह बार बार गुलाटी खाता है और प्रतियोगिता जीतता है, उस तरह ये स्टंप गुलाटी खा रहा था। और तेज गेंदबाज को ये दृश्य को इतना मजा आता है उसको। एडम जंपा आप आए 17 रन इसका अब तक बना है, 153 रन 8 विकेट पर। और वीरेंद्र लक्ष्मण के चेहरे पर प्रसन्नता झलकती हुई दिख रही है। बहुत बढ़िया शुरुआत रही है वीवीएस लक्ष्मण की। और मुख्य कोच फुल चार्ज इस समय। हालांकि बीच बीच में उन्हें मौका जरूर मिलता था, लेकिन अब राहुल द्रविड़ पूरी तरीके से सेवानिवृत्त हो चुके हैं मुख्य कोच के पद से, और एक नई जिम्मेदारी के साथ, नई योजना और रणनीति के साथ वीवीएस लक्ष्मण देखते हैं भारतीय क्रिकेट को किस ऊंचाई तक ले जाते हैं। डगआउट में दबाव और तनाव साफ तौर से दिखाई दे रहा है, वो मुस्कुराहट दिखाई नहीं दे रही है सभी खिलाड़ियों के चेहरे पर जिसकी उम्मीद करते हैं। और हम बात कर रहे थे वीवीएस लक्ष्मण की, मिशन 2024 वेस्ट इंडीज यूएस, और बीच में है वीवीएस लक्ष्मण। देखते हैं किस अंदाज में भारतीय टीम को मिशन 2024 में सफलता दिलवाते हैं वीवीएस लक्ष्मण। अभी तो उसमें काफी वक्त है और तब तक तो कितना ही पानी में रह जाएगा। लेकिन सवाल यही है कि क्या भारतीय क्रिकेट और जो नई पौध जो आ रही ना, जितने सारा बेंच स्ट्रेंथ जो दिखाई दे रही है, वो क्या उम्मीदों पर खरा उतरेगी? सवाल ये कि देखिए छोटे मैचेस में तो ये तमाम खिलाड़ी अच्छे खेलते हैं, लेकिन ये जिस तरह विकेट गिरे, भारतीय फील्डिंग भी लगातार सुधरती जा रही है। विश्व क्रिकेट में नाम हो गया भारतीय फील्डिंग का। और ये आउट हुए तो मैक्सवेल, यशस्वी जायसवाल ने कैच लिया था, कैचेस पकड़े गए बराबर, ठीक से जज करके पकड़े गए। फिर जी यॉर्कर करने की कोशिश थी, लेग स्टंप पर थी, अंगूठा तो जी यॉर्कर कहते हैं, कहता हूं मैं इसको, लेकिन जैसे तैसे ऑन साइड पे खेल दिया। जब इतना बड़ा स्कोर का पीछा करते हैं तो इस तरह से कैच लेते। ऋतुराज गायकवाड़ ने वो कैच लिया था, और ये तो चिप ही कर दिया था, कोई ताकत दे ही नहीं पाए, शरीर पर ही आ गई थी, हाथ चलाने की जगह नहीं मिली, चिप कर दिया अक्षर पटेल का कैच। और ये तो खूबसूरत यॉर्कर थी, पहले ऑफ स्टंप उखड़ा और लेग स्टंप गुलाटी खा गया। बिल्कुल सटीक लाइन और लेंथ के बल पर भारतीय बॉलर्स ने लगातार अंतराल पर विकेट प्राप्त किए। हालांकि ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने अपना आक्रामक रुख नहीं छोड़ा था, लेकिन कुल मिलाकर के जिस लाइन और लेंथ की जरूरत रहती है, खासतौर से T20 मैचेस में, वो लाइन और लेंथ दिखाई दी, जिसका परिणाम ये कि इस समय मैच पूरी तरीके से भारतीय टीम के नियंत्रण में है। और उम्मीद करते हैं कि भारतीय टीम इस मैच को आसानी के साथ जीत जाएगी। पहला मैच भारत जीत चुका था, अभी यहाँ पर हर्षदीप ने कहा कि मेरे ख्याल से तो आउट है, तो तुरंत ही कप्तान ने कहा कि रिव्यू ले लेते हैं, देखते हैं कि क्या निर्णय दिया जाता है। टीवी अंपायर नितिन मैनन के पास। The ball is very close to the bat. Can we have a please? Waiting for the Madan. Still waiting, waiting for Raj. Keep it going, please. Pat line, keep it going to the pads. Yeah, no batting ball tracking, please. Pitching outside off, impact is outside off. Thank you, and go back to Madan outfield. Madan, you can stay with your decision. You're on screen now, you can see the Madan. और बिल्कुल सही निर्णय, क्योंकि इंटरसेप्शन जो था ऑफ स्टंप के बाहर था,
इस वजह से निर्णय चंपा के पक्ष में गया। अर्शदीप राउंड का विकेट आए हैं। बढ़िया बॉलिंग, सीधा यॉर्कर, मैदान के फर्नीचर को अस्त-व्यस्त कर दिया। एक सफलता जीती अपने लिए और मुश्किलें पैदा की ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए। ये होता है जब दबाव पड़ता जाता है और विकेट गिरते जाते हैं, बॉलर्स का विश्वास बढ़ता जाता है, वो प्रयोग करने में हिचकता नहीं और अब बिल्कुल सही निशाने पर खेलते हुए यॉर्कर्स का लगातार इस्तेमाल। और इस बार ये सीधी कदी हुई यॉर्कर ऑफ स्टंप और साफ बोल रहे ऑफ स्टंप डर पड़ाकर दूर जा गिरा और उसी के साथ एक और विकेट। ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल पराजय की कगार पर पहुंच गया है। 155 रन 9 विकेट के नुकसान। कौन चाहेगा कि श्रृंखला इस तरह से हो कि आप लगातार 2 मैच हार जाएं। ऑस्ट्रेलिया के लिए सब कुछ ठीक चल रहा था, टॉस भी उन्होंने जीता था, मालूम था कि ड्यू पड़ने वाली है, ड्यू पड़ी भी, लेकिन भारत ने बल्लेबाजी इतनी अच्छी की और इतना बड़ा लक्ष्य रखा, 236 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य, उसको पार पाना बहुत मुश्किल काम होता है और जल्दबाजी में फिर ऐसा ही होता है, हेराफेरी होती जाती है, आप विकेट होते जाते हैं। अब तनवीर संघा है, 8 पारियां 34 रन 94 का स्ट्राइक है, लेकिन इन सब का कोई महत्व नहीं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के हाथ से बाजी निकल चुकी है। बर्थडे बॉय फिलहाल स्ट्राइक पर, ऑन ड्राइव किया, डॉट बॉल, इसी के साथ ओवर की समाप्ति। ऑस्ट्रेलिया 155 पर 9, 17 ओवर के बाद। So things went yesterday. India put into bat for a big score, 235 for 4. Real good top order batting performance. The first 3 batters getting half centuries. And in reply, Australia 155 for 9. Just the one partnership between Stoinis and David. So 81 needed from 18. 3 wickets apiece there for Prasidh Krishna, Ravi Bishnoi. Into Rockman's ball towards the end. Prasidh into his final over. Looking to add to his tally. 3 for 29. Best figures so far. As you rightly mentioned, quite a few Yorkers and very executed Yorkers from the Indian paces since the 15th over. 34%. I know those 15% attempted Yorkers. Just pass cover that was in the air. Certainly a different game in the back stages of the match when you've got huge scoreboard pressure on a batting unit. The execution of the Yorkers just seem to happen. I mean, that's a very high percentage is what we've seen now in that pitch match. And the side's got to be striking away at 14s and 15s. Becomes impossible with good execution of a Yorker. I mean, how many times do we say that in all formats of the game? That a quality Yorker can really take an opposition down. That swung away on the onside. Again, not quite timed. A great example of a good Yorker here. Right at the block hole, missed the line, speaking the pace as well. Actually picking up his first for tonight. Just that bit of reverse as well, Deep. Tailing nice and late, just getting underneath the batsman's eyes. That's a beauty. It's been very impressive, isn't it? Swinging with the new ball and then coming and bowling those Yorkers and the slow deliveries, the back end of the innings. Ouch. Matthew Wade cannot smile, but the dugout, a little chuckle here and there. Always happens. Always happens. It's funnier in the dressing room. I tell you what,
Man concerned. He's not a happy chappy. He's in bad shape. I'd like to be on that yacht right now that you're on just more recently, rather than this moment here. Yeah. Oh yeah, that is just right in the centre. Well, he's in agony. Few deep breaths. But India put up a first-class batting performance. Half centuries for the top three, and Jaiswal really set the tone early doors. Blazing 50 of just 25 balls, 53. Yeah, it was the perfect set, really. Right from the get-go. Jaiswal was brilliant. Hit the ball both sides of the wicket. More powerfully, I think, through the offside. Did get those couple of back-to-back boundaries in that over. It was sensational form. Great power up the back foot. Conventional play. It was also backed up by fine partnership as well with set up play. And he was replaced by Ishan Kishan. And he wasn't far behind. Started off well with that boundary. Plenty of meaty blows to the onside. Used the speed well against spin. Kept the tempo going. And all the while, Rudraj by joining his very best at that end as well. Also contributing, probably won't feature in the highlights packages, but did his job. Good strike rate, 130. Didn't really need to be doing much more than he did. There was the glue in that innings. His 50 obviously wasn't as quick as the other two. He was the fighter, and everyone else played around him. Got out in the last over or so. Was right there, right through the played superbly. Very well measured innings from Ruturaj. 58 or 43 might not be the quickest. It's just the one partnership in this Australian innings, Tim David and Marcus Stoinis. Otherwise, it's been India on top. Ritu Singh coming at the back end of the innings and again showing how good he is. 21, 9. Most people are just getting their eye on this one, but not Ritu Singh. Smart cricket, powerful cricket, really composed cricket. That's big. It's finally middle one for 6. It's 167 for 9. Well, he's still a man that's feeling every inch of what just happened the previous couple of balls. Oh, look at this, banged in. It's amazing how sometimes it can get you going as well. And Matthew Wade still feeling that low. Maybe we'll see a few more shots like the last one he played at the last ball. It's Sunma on strike now. Still 2 overs to go. That's the danger when you're chasing down
mammoth total of 235. You just got to go all in. If it works out fine. It's a great game, but otherwise, this is what happens. You go down trying, but you'd rather do that and play safe. Yeah, exactly. But you really have to have a perfect run chase. That's the bottom line. You have to get off to a really solid start without losing wickets, and that's what Australia couldn't do. Lost too many wickets inside that power play, including Maxwell, who's a real game changer. Consolidated partnership, but even that wasn't quite enough at any point in time. I suppose the question is, how does now Australia strengthen this side? Fresh off a World Cup victory here in India, been here for 8 weeks, 9 weeks now. There's definitely some fatigue in the camp, there's no question of it. That's a nice pickup shot. It's like a sweep, nicely picked up. Second 6 for Matthew Wade. Yeah, that's a beauty. Sweep shot. Angled nicely towards the centre of the bat. Not the worst delivery, but what a shot. Yeah, so how do they pick themselves up, dust themselves off from these first couple of matches and make themselves the side that is at very least difficult to beat? For mine, they didn't really turn up in that first game. You always know it in the field with Australia. It's a certain litmus test. You think back to the semi-final and final of the World Cup. They were amazing in the field defensively. That's always a great sign of an Australian side that's up and running and wanting to actually do something. So they haven't chose to play ahead at this stage. Obviously tonight will come and go, and it'll go India's way, and Australia will be 2 down, but they've got to dust themselves off for Guwahati on the 28th of November. Over again in Raipur. Just a couple of days' time, Guwahati in Raipur on the 1st of December, and then over to Bengaluru. So plenty still to play for. The World Cup is a tester. Next year, shot away again. Is it enough? Yes, it is. Yes, throwing some punches before going down. Matthew Wade. Third 6 for him. You mentioned about Australia. This seemed listless on the field as well from the outside in the first couple of games. Obviously, the World Cup taking its toll. And very understandable too. Huge event. On the other hand, from the Indian point of view, just seeing that the bench strength pretty good, especially with the bat for this format of the game. 181 for 9. So 181 for 9. 1 over to go. So Mukesh Kumar. As you mentioned about fatigue, which is understandable, but it's the bowling that hasn't fired. People defend 208 in the first game. Here, conceded 235. If you look at the bowling unit, they're kind of fresh. They just came in. And that's one thing I guess Australia need to pick it up. It's the bowling side of things. The batter, I believe, done fairly decently so far. With Jason Behrendorff, there must have been something just not quite right with him today, because he was the pick of the bowlers. Up in Vizag, no question, it just went a little over 6 runs and over. Every other bowler was going at 11s pluses in that tournament. So that's one
obvious things. Zampa obviously playing for the first time tonight, coming into this match. Maxwell still, I guess, feeling the effects of the fatigue of a World Cup campaign. So you're right, I mean, Ellis has got a lift. Stoinis has probably got a lift, had a pretty quiet World Cup. Didn't play a lot either. You know, so there's plenty to play for, absolutely. And that side will keep throwing punches. And it'll also peak at the right time too. That's 6 more. It's carved it away over the offside. It's gone a long way behind point. There's a field on the boundary as a sweeper. When 10 rows back. Yeah, attempted Yorker going wrong. Really good piece of timing there. It's a high full toss. Not the easiest of things to put it away. That's well there. Not too over point. And look, you know, in spite of all of these challenges for both of these teams, not just Australia that's feeling fatigued from a World Cup, also India's mammoth campaign at home, you know, the disappointment as well. The bench strength of India now being tested, and they've been 2 very good games of cricket. You know, so that's the last thing that he wants right there. That's like at the golf course, the ground under recovery sign. There's no need to be there. Oh, Matthew, we can afford to smile now. You can, because it was just a little bit off target. Otherwise, you saw what happened first time round. And even the bowlers and the fielders can afford to smile. They see the funny side of it. 2 balls to go in this game. It's funny how it's hilarious until it's you. So the final ball up again. And it means India will take a 2-0 lead in the series. And the young batters, they've had a good game. Nicely struck. They'll finish off with a boundary. But it's India who win this game by 44 runs, and they go 2 up in this 5-match series. So a good win here for India. Surya Kumar Yadav will be mighty happy with the way things have gone. He was calm and composed in the field, even when the partnership between Tim David and Marcus Stoinis was looking good.